Hello my dear friends, our today's video is a different because of different I am said. This is the based on Income Tax Act 1961. It means how to calculate income from salary in Income Tax Act 1961. So let's start our today's video. Mr. Parbatrao is employed in a Bhim Sindhu Limited. Mr. Parbatrao is employed in a Bhim Sindhu Limited Pune as a manager. During the previous year 1920, he has submitted following information or data. Basic salary rupees 12,500 per month. Number second, DA 30% of basic salary consider for calculation of provident fund. जब provident fund calculate करेंगे तब इसको consider करेंगे. And here is what should be the mention how to calculate DA. DA should be calculated as a 30% of basic salary. Number third, compensatory allowances. City compensatory allowance rupees 8,500 per month. Children education allowance rupees 3,000 per month है. Into the bracket, he has a 2 sons and 1 daughter studying in the school. मतलब इसका कि उसको तीन बच्चे हैं, मतलब एक दो लड़के और एक लड़की. Number 5, HRA rupees 1,500 per month. What is the full form of HRA? So HRA is a house rent of allowances. इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि हाउ टू कैलकुलेट HRA. डिफरेंट तरीके से हमने वहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझने के लिए, तो आप वो वीडियो जरूर देखें कि हाउ टू कैलकुलेट HRA इन इनकम टैक्स एक्ट 1960. नंबर 6 देखेंगे, कंट्रीब्यूट टू रुपीज 2,000 पर मंथ टूवर्ड हिज recognized provident fund and an equal amount is contributed by employer. He has paid rupees 2,500 as a professional tax. Okay. Number 8, interest credited to his recognized provident fund account at the rate of 12% per annum amounted to rupees 14,400. Number 9, medical reimbursement of the hospital bill is in respect of his wife rupees 18,000. मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिल है 18,000 रुपीज. किसने दिया है खर्चा? उसकी वाइफ का खर्चा है. ठीक. नंबर 10, ही हैज टेकन अ LIP. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LIP? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी of rupees 1 lakh in respect of his wife by paying an annual premium of rupees 14,800. Number 11, he stays in a rented house at a Pune by paying rent rupees 3,000 per month. तो रेंटेड रहता है कहाँ पर? पुणे में रहता है. 3,000 पर मंथ रेंट वो पेड करता है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर. तो यहाँ पर 19-20 था तो असेसमेंट ईयर हमारा क्या आ जाएगा? सो लेट्स सी. सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर परबतराव पुणे फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 2021. So this is our assessment year. What is the previous year? So we have a previous year into the problem 1920. So let's start our today's video. So these are the particulars, amounted rupees and amount rupees. So what is the first point to the here in a problem? Basic salary rupees 12,500 per month. So let's see basic salary. How much of basic salary is equal to 12,500 per month, right? So into the calculation we have a annually calculation, so we have a here consider a 12 months. So 12,500 into 12 months. So how much of amount? 1,50,000 is basic salary. Number next. Okay. Dearness allowance 30% of basic salary. So dearness allowance into the bracket 30% of basic salary. Bracket should be completed. So how much of 30%? Rupees 1,50,000. So this is our basic salary, right? And dearness allowance should be a 30% on basic pay or on basic salary. So we have 1,50,000 into 100 into 30. Okay, 45,000. मतलब 30% हमें 1,50,000 के ऊपर निकालना था. तो लेट्स सी नंबर नेक्स्ट. ओके, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस रुपीज 8,500. सिटी कंपेंसेटरी. ओके, तो यहां पर लिखेंगे सिटी कंपेंसेटरी
स्पेलिंग चेक कर लेंगे ना, या सही है। कंपेंसेटरी अलाउंसेस सिटी कंपेंसेटरी, राइट। तो ये अमाउंट डायरेक्ट आउटर को चली जाएगी, बिकॉज वाई, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस है, इसके ऊपर कोई एग्जाम्पशंस नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी हैव डायरेक्टली आउटर को अमाउंट ये हम लोग लिख देंगे। सो हाउ मच, 8500 पर मंथ, सो इज इक्वल टू 8500 पर मंथ इंटू 12 months, हाउ मच ऑफ अमाउंट, 8500 per month, right? Let's see once again, 8500 per month. Okay, so this is our 8500 city compensatory allowance. Number next, children education allowance rupees 3000 per month. So we have a children education allowance. We have means income of Mr. Prabhatra, which is children education या फिर एजुकेशन अलाउंस। ब्रैकेट में लिखेंगे, चलो ऊपर ही लिख देते हैं ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी, क्यों, क्योंकि वहां पर दिया है, क्या दिया है, चलो देख लेते हैं प्रॉब्लम में। 3000 per month, he has a 2 sons and 1 daughter studying in the school. उसे 2 सन है और 1 डॉटर है जो स्टडी कर रही है, कहाँ पर, स्कूल में स्टडी कर रही। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे into the bracket 2 sons, 2 sons की बजाय हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 childs, ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, 3 childs। इनर को अमाउंट आएगी, कितनी आएगी इनर को अमाउंट, यहाँ पर देखेंगे 3000 पर मंथ है, तो 3000 पर मंथ। पर चाइल्ड बोला है क्या, नहीं, अगर पर चाइल्ड बोला रहता तो हम लोग पर चाइल्ड कैलकुलेट करते, बट यहाँ पर बोला गया है 3000 per month only, so that's why we have a 300 per month only, we have a calculation to the here. So 300 per month, it means we have a 12 months, so how much of amount, 3600. But children education allowance have a exemptions, less exemptions under section, less exemptions under section 1014, 10 into the bracket 14. So what is the exemptions, so we have a exemption which is 100 per child, 100 rupees per child, maximum 2 child into 12 months. You got it, what I'm said, 100 rupees per child per month, maximum 2 child, 100 rupees per month, maximum 2 child। इसका मतलब यहाँ पर इसको 3 चाइल्ड्स है, तो हमें यहाँ पर एग्जम्पशंस कितना मिलेगा, यस, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे इज इक्वल टू 100 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड इंटू 12 मंथ्स, 2400। आउटर को हमारी अमाउंट चली जाएगी 3000 माइनस 3600 माइनस 2400, 1200 is our actual amount which is a children education allowance। इस सिंपल लैंग्वेज में एग्जम्पशंस था अंडर सेक्शन 1014 के तहत 100 पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखें। चलिए, तो नंबर नेक्स्ट है, क्या है, HRA, हाउस रेंट ऑफ अलाउंसेस रुपीज 1500 पर मंथ। यहाँ पर लिखेंगे हाउस रेंट ऑफ, या फिर हाउस रेंट अलाउंसेस ऐसा लिख देते हैं। इसको भी एग्जम्पशंस हैं,
लेस exemptions under section 10 into the bracket 13A। सो इसको कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट से HRA। मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है कि HRA कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो देख लीजिए, आपको फटाक से ये कैलकुलेट करना आ जाएगा। HRA ₹1500 पर मंथ है, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 1500 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स 18,000 रुपीज। अब एग्जाम्पशंस कैसे निकालेंगे? सो वी हैव अ कैलकुलेशन फॉर वर्किंग नोट। सो नंबर वर्किंग यहां पर लिखेंगे, नंबर वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ HRA। सो HRA कैलकुलेशन के लिए हमने बोला था, आप लोगों को वीडियो में भी बताया है कि देर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ HRA देर आर 3 स्टेप्स। सो व्हाट आर द 3 स्टेप्स? अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ HRA देर आर 3 स्टेप्स। नंबर फर्स्ट स्टेप, सो व्हाट इज द नंबर फर्स्ट स्टेप? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, मतलब एक्चुअल HRA कितना रिसीव्ड किया है वो देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल HRA कितना रिसीव्ड है। तो देखा ना, हाउस रेंट ऑफ अलाउंस कितना रिसीव्ड है? 18,000 रुपीज। ये अमाउंट कहाँ से आई? यहाँ से आई बेटा। हाउस रेंट ऑफ अलाउंसेस ₹1,500 पर मंथ वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 1,500 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स 18,000 रुपीज। चलो ये हो गई पहली कंडीशन कंप्लीट। नंबर बी कंडीशन और नंबर बी स्टेप, जिसको हम सेकंड स्टेप भी कहेंगे। सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, या फिर आप एसएससी कह सकते हैं। एम्प्लॉय एक्चुअल में कितना रेंट पेड कर रहा है, तो चलिए ना देखते हैं, प्रॉब्लम में देखेंगे। हमने पढ़ते पढ़ते लास्ट 11 नंबर का ऑप्शंस देखा था। ही स्टे इन अ रेंटेड हाउस एट अ पुणे, वो स्टे कर रहा है रेंटेड हाउस में, जहां पर, कहां पर? पुणे में। बाय पेइंग रेंट ₹3,000 पर मंथ, और कितना पेड कर रहा है? 3,000 पर मंथ पेड कर रहा है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, हाउ मच ऑफ अमाउंट? 3,600। कभी कभी हमें ये स्टेप याद नहीं आती, भूल जाती है, तो इसलिए ये वर्ड हमेशा याद रखना है, एक्चुअल। एक्चुअल तो पहला क्या है? एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। ये दोनों अमाउंट आपको प्रॉब्लम में दी रहती है। अगर ये दोनों अमाउंट है, इसका मतलब हमें HRA कैलकुलेट करना है, मतलब करना है। इतनी बात ध्यान में रखें। तो यहां से हम लोग हमेशा लेस करते हैं। लेस क्या लेस करेंगे? जिन्होंने वीडियो देखा है HRA का उनको पता होगा। सो लेस 10% ऑफ सैलरी। सो 10% हमें लेस करना है सैलरी का। सो वी हैव अ कैलकुलेशन फॉर सैलरी। अब ये अलग बात यहाँ पर हो जाती है बेटा, यहाँ पर बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, तो कैलकुलेशन भी करना पड़ता है सैलरी। सो लेट्स सी इन अ प्रॉब्लम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बेसिक सैलरी ₹12,500 पर मंथ, यहाँ पर आएंगे वर्किंग नोट में, यहाँ पर लिखेंगे बेसिक सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी इज इक्वल टू 12,500 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स 1,50,000। चलिए नेक्स्ट जाएंगे, देखेंगे डियरनेस अलाउंस 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 30% में दिया है ना, it means if the dearness allowance has in a percentage as a fixed percentage, we have to consider this amount should be into the HRA calculation, और ये अमाउंट ऐड होगी बेसिक सैलरी में। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि आप मेरा HRA कैलकुलेशन का वीडियो देखिए, वहां पर मैंने आपको विद दी फॉर्मूला बताया है कि कैसे HRA कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
एट DA 30% है कि नहीं, 30%, DA कितना है 30%। तो ये दोनों अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाती है, कहाँ पर, डियरनेस अलाउंस, जहाँ पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। So 1,50,000 and 45,000 should be considered to calculation for HRA 45,000, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30%, या फिर डायरेक्ट 30% 1,50,000 का 45,000 आ जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल सैलरी हमें मिल गई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ HRA। तो कितनी हो गई, 1,50,000 प्लस 45,000, so 1,95,000 is our calculation salary for the calculation of HRA. So is equal to here 1,95,000 divided by 100 into 10%, so 19,500 rupees is our salary. So is equal to 36,000 minus 19,500, 16,500 is our actual rent paid by employee. नंबर नेक्स्ट स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप है, जो हमें देखना पड़ता है कि ये बंदा रहता कहाँ पर है, वेयर ही रेसिडेंट। सो हियर इज द लास्ट नंबर कंडीशन, ही स्टेज इन अ रेंटेड हाउस एट अ पुणे, वो रह रहा है पुणे में। अगर पुणे में रह रहा है तो हम लोग नंबर थर्ड में लेंगे 40% ऑफ सैलरी। वाई, बिकॉज ऑफ 40% सैलरी। ये भी मैंने आप लोगों को मेरे HRA के वीडियो में ठीक से बताया है कि 40% कहाँ पर लेना है, 50% कहाँ पर लेना है, वो वीडियो आप देख लें। सो इज इक्वल टू 1,95,000 divided by 100 into 40%, so 78,000 is a 40% of salary. So कितनी अमाउंट को और कौन सी अमाउंट इसमें से हम लोग एग्जम्पशंस के लिए लेंगे। सो लेट्स सी फॉर द एग्जम्पशंस for the exemptions of salary in HRA, we have a take list of following, list of the above, फॉलोइंग नहीं बोलेंगे अभी, अबो बोलेंगे। सो लिस्ट ऑफ द अबो, ये मतलब A, B और C, ये तीनों में से लिस्ट ऑफ कौन सी है, कम कौन सी है। सो 18,000 कम है, चलिए देखेंगे। 16,500 कम है, 78,000 कम है तो नहीं। तो कितनी अमाउंट बेटा कम है, ₹16,500 इज अवर एग्जम्पशंस फॉर HRA कैलकुलेशन 16,500। ऐसे आप लोगों को वर्किंग नोट बनाना है जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपकी आंसर बुक में। तो यहाँ पर लिखेंगे 16,500 रुपीज इज इक्वल टू जाएंगे 18,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 16,500 बिकॉज ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1013A। तो चलिए नेक्स्ट जाएंगे, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नंबर 6, he contribute ₹2,000 per month toward his recognized provident fund and an equal amount is contributed by employer। तो कंट्रीब्यूशन है कितना, 2,000 पर मंथ है, कहाँ पर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में है। कितना है, 2,000 पर मंथ। तो चलिए ना सॉल्व करते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। How much of contribution to the recognized provident fund is equal to 2,000 per month into 12 months, so 24,000। बेटा इसमें से हम लोग लेस एग्जम्पशंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11, 12। 10 into the bracket 11 bracket should complete into the bracket 12. So how much of exemption
एग्जम्पशंस कितना लेना है? सो लेट्स सी इन अ वर्किंग नोट। यहां पर बोलेंगे नंबर सेकंड, कंट्रीब्यूशन टू recognized provident fund. So how much of contribution here is equal to 2000 per month into 12 months, 24,000 लेस। मैंने वहां पर आप लोगों को बोला लेस क्या करना है, एग्जम्पशंस देना है। एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10 into the bracket 11 bracket complete into the bracket 12 bracket complete. How much of exemptions? So exemption is at the rate of 12% of salary. ये बातें आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए कि एग्जम्पशंस कहाँ पर 12% है, कहाँ पर 40% है, कहाँ पर 10% है, लेकिन कहाँ पर 9.5% है। सो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर एग्जम्पशंस मिलेगा आप लोगों को अंडर सेक्शन 10, 11, 12 के अंदर एट द रेट ऑफ 12% ऑफ सैलरी। कितना मिलेगा बेटा? एट द रेट ऑफ 12% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया, तो यहाँ पर लिख देंगे 12% ऑफ सैलरी। अब 12% ऑफ सैलरी हमें लेना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर बताया गया है प्रॉब्लम। डियरनेस अलाउंस 30% ऑफ बेसिक सैलरी कंसिडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब है कि कंसिडर करना है डीए कहाँ पर? जब हम प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन करेंगे तब इसको कंसिडर करना था। तो बार बार सैलरी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? आप लोग बोलोगे हाँ सर है, बट मैं बोलूँगा नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेशन ऑफ सैलरी करके रखा है जो एचआर के लिए कैलकुलेट किया था, एचआरए के लिए। सो एक्चुअल सैलरी यहाँ पर हमें कितनी है? 1,95,000, जहाँ पर हम लोगों ने डीए भी ऐड किया है। सो इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना लेना है? 12% ऑफ सैलरी। 1,95,000 डिवाइडेड बाय 100 into 12, so 23,400 is our amount. अब ये अमाउंट इज इक्वल टू करेंगे इसमें से, मतलब 24,000 में से हमें कितना माइनस करना है? 23,400 रुपीज। सो 600 हमारा आउटर को अमाउंट चली जाएगी जो कि है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो चलिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 24,000 कैसे आया आप लोगों ने देखा, ठीक है। 2000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इज इक्वल टू 24,000। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11 जो कि हमें लेस करना है 10, 11, 12 के तहत कितनी अमाउंट हम लोगों ने निकाली बेटा? तो अमाउंट चेक कर लेंगे, 23,400 हम लोगों ने निकाली थी। 23,400 आउटर को अमाउंट कितनी चलेगी यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन करेंगे, इज इक्वल टू 23,400। सो 600 इज आवर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। चलिए आगे जाएंगे। नंबर 6 तक हम लोगों ने पूरा देख लिया, क्लियर किया। नंबर 7 जाएंगे। ही हैज पेड ₹2,500 एज अ प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स वो पेड कर रहा है ₹2,500। अब ये प्रोफेशनल टैक्स कहाँ पर जाता है कि नहीं? कहाँ पर जाता है प्रोफेशनल टैक्स? तो फिलहाल ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नंबर 8 देखेंगे। interest credited to his recognized provident fund account at the rate of 12% per annum amounted to rupees 14,400। ओके, उसने मतलब रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का उसे इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड है कि नहीं? टू हिज रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट है कितना? एट द रेट ऑफ 12% पर एनम अमाउंटेड टू रुपीज 14,400। तो यहाँ पर लिख देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। बट यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है, क्या? एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कितना था? 14,400 रुपीज। चेक कर लेंगे बेटा, 14,400। तो यहाँ से बेटा लेस कहाँ पे चला गया?
यहां से हम लोग लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, एग्जम्पशंस, एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10 into the bracket 11 bracket complete 12, okay, into the bracket 12 bracket complete. How much of exemptions under section 10 11 12, ये बी पार्ट होगा, ठीक है, ये ए पार्ट होगा, ये बी पार्ट होगा. इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज पर फॉर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. एग्जाम्पशंस कितना है, बट यहाँ पर फिर से लिखेंगे एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम, पर एनम. इसका मतलब यहाँ पर कितना भी परसेंटेज हो, 20, 25, 12, 10, 11, कितना भी होने दो, एग्जम्पशंस हमेशा कितना रहेगा, 9.5% पर एनम. तो देखिए ना, यहाँ पर हम लोगों ने एग्जम्पशंस लिया कितना, 12% एग्जम्पशंस लिया था, ठीक है. वो 12% हम लोगों ने किसके ऊपर कैलकुलेट किया, तो वर्किंग नोट में देखेंगे 12% ऑफ सैलरी के लिए हम लोगों ने वहां पर एग्जम्पशंस दिया. बट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है 9.5% पर एनम इंटरेस्ट के ऊपर. तो बेटा यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से सैलरी कैलकुलेट करने का, नहीं बेटा, यहाँ पर कोई सैलरी कैलकुलेट नहीं करनी है, कोई सैलरी यहाँ पर लेनी नहीं है. तो लेना क्या है, तो देखिए ना, 12% पर एनम अगर 14,400 है तो 9.5% पर एनम कितना होगा, इसका मतलब 12% कितना है, 14,400. तो 1% हमें निकालना है, तो आप लोग 1% निकालते बैठिए, ठीक है. मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये बोलता हूँ, हमें निकालना है 9.5%. तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 14,400 डिवाइडेड बाय 12%, right, divided by 12% into 9.5 परसेंटेज. क्लियर है. तो यहां पर अमाउंट ठीक से कैलकुलेट करेंगे, क्या बेटा, इज इक्वल टू 14,400 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा नहीं, डिवाइडेड बाय 12% इंटू 9.5, कितना आ गया, 11,400 रुपीज हमारी परसेंटेज आ गए. अगर ये आपको ठीक से नहीं समझाए तो मैं आप लोगों को वर्किंग नोट में समझा देता हूँ. नंबर 3 वर्किंग नोट देखेंगे, चलिए. नंबर 3 वर्किंग नोट लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन recognized provident fund. So how much of interest should be recognized provident fund is equal to 14,400. अब ये 14,400 कैसा है, 14,400 is a at the rate of 12%, 12% है. हमें एग्जम्पशंस देना है, लेस एग्जम्पशन है, कितना है एग्जम्पशन, एग्जम्पशंस लिख देंगे, एग्जम्पशंस कितना है 9.5%. तो 9.5% मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, इज इक्वल टू 14,400 डिवाइडेड बाय 12% इंटू 9.5%, 14,400. आउटडोर को अमाउंट कितनी चली जाएगी, इज इक्वल टू 14,400 minus 11,400. Amount rupees 3,000 should be goes to outer. So चलिए यहाँ पर लिखेंगे is equal to 14,400 minus 11,400. 3,000 should be a goes to outer amount. So let's next. Number 9. Medical reimbursement of the hospital bill in respect of his wife rupees 18,000. तो मेडिकल रीइंबर्समेंट है, यहाँ पर लिखेंगे मेडिकल रीइंबर्समेंट. ओके, मेडिकल रीइंबर्समेंट कितना है बेटा, मेडिकल रीइंबर्समेंट 18,000 रुपीज. कहाँ पर है, यहाँ पर है 18,000 रुपीज.
तो इसमें से लेस करेंगे, लेस एग्जम्पशंस, लेस एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन, है कि नहीं, लेस एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सर अंडर सेक्शन कहाँ से लाएंगे, कहाँ से नहीं लाएंगे। तो बेटा उसके लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब जैसे कि मैं अगर आप लोग यहाँ पर बता दूं कि अंडर सेक्शन मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर डैश करूंगा एग्जाम्पशंस के लिए, और यहाँ पर लिखूंगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 2019 एंड 20 दिस एग्जाम्पशन इज नॉट अलाउड और नॉट अवेलेबल। वोट यहाँ पर लिखेंगे NA, आउटर को अमाउंट चली जाएगी 18,000। क्यों बेटा? क्योंकि इसका एग्जाम्पशंस 1920 से रिमूव कर दिया है, नॉट अवेलेबल कर दिया है, नॉट एप्लीकेबल कर दिया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 18,000 मेडिकल रीइंबर्समेंट की अमाउंट लिखेंगे। चलिए बैक जाएंगे। He has taken a LIP of rupees 1 lakh in respect of his wife by paying an annual premium of rupees 14,800 rupees। तो 14,800 रुपीज़ उसका क्या है बेटा? LIC का प्रीमियम है। तो ये 14,800 या फिर 1 लाख रुपीज़ ये हम कहाँ पर लेंगे? Where should we consider this amount? When the timing of calculating a net liability or actual salary, that time should be taking these deductions। okay, तब हम ये deductions लेंगे। नंबर 11 देखेंगे, he stays in a rented house at a Pune by paying rupees 3,000 पर मंथ। मतलब ये यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है, तो यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है, राइट? ओके, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर बाकी है क्या? ही हैज़ पेड रुपीज 2,500 एज अ प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वी हैव कैलकुलेट टू द ईयर ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल टू बेसिक सैलरी तक जाएंगे। बेसिक सैलरी हम लोगों की मिल गई, अमाउंट को क्या हो गया? इज इक्वल टू सम ओके, हाउ मच ऑफ अमाउंट? 3,21,300 रुपीज। चलिए यहाँ से लेस करेंगे अमाउंट लेस करेंगे ना, लेस अमाउंट लेस करेंगे। हाँ सर बिल्कुल अमाउंट लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे बेटा? लेकिन लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 नंबर फर्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन with effect from 2020 2021 with effect from 2020 2021 कितना है? 50,000 रुपीज। नंबर सेकेंड डिडक्शन लेंगे, नंबर सेकेंड डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इसको ब्रैकेट में नीचे लिखेंगे, इंटरटेनमेंट अलाउंस को नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट एम्प्लॉई। ये प्राइवेट एम्प्लॉय को नॉट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर NA लिखेंगे, लास्ट में जाएंगे, नंबर थर्ड लिखेंगे। क्या है नंबर थर्ड हमारा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का प्रोफेशनल टैक्स। हमेशा याद रखना है प्रोफेशनल टैक्स कितना था प्रॉब्लम में? 2,500 एज अ प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2,500। तो आउटर को अमाउंट एक्चुअल ग्रॉस सैलरी की बाद में डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 देख रहे हैं, तो 50,000 प्लस 2,500 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 52,500।
ठीक है, इसको प्लस कर देंगे बेटा 52,500, तो यहाँ पर हम लोगों की नेट सैलरी आ गई। इसी को हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ गई, तो देखिए ना क्या करना है, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस हटा देने। तो 3,21,300 माइनस 52,500, हाउ मच ऑफ अमाउंट, 2,68,800 is our income from salary. So this is our today's video which is based on income from salary. ये छोटा सा प्रॉब्लम था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। चलिए इसको ठीक से देख लेंगे, है कि नहीं। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट हम लोगों ने देख लिया। बेसिक सैलरी थी 1,50,000, डीएनएस अलाउंस 30% लेना था, 45,000 आ गया। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस 1,02,000 आ गया, है कि नहीं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,600, एग्जाम्शंस लगा दिया हमने 2,400, 1,200 आउटर को अमाउंट चलेगी। हाउस रेंट अलाउंस हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, जो 18,000 था, एग्जाम्शंस लगाया 16,500, आउटर को अमाउंट चलेगी 1,500 रुपीज़। आगे बढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज पॉइंट फंड था 24,000, इसको एग्जाम्शंस लगाया हमने 12% ऑफ सैलरी 23,400 माइनस होने के बाद में 600 रुपीज़, आउटर को अमाउंट चलेगी। इंटरेस्ट ऑन रिकग्नाइज पॉइंट फंड था एट रेट ऑफ 12%, इसको हम लोगों ने एग्जाम्शंस दिया 9.5% के तहत 11,400 लेस करने के बाद में 3,000 रुपीज़, आउटर को अमाउंट चलेगी। मेडिकल रीइंबर्समेंट था 18,000, जो कि यहाँ पर लेस एग्जाम्शंस है NA की तहत 18,000 rupees. So this is the amount should be a goes to the gross salary is equal to and deduction under 16. So we have a net salary of rupees. So guys, this is our today's video which is a based on income from salary. अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो कृपया करके आप लोग इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी। तब तक के लिए ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।